कल्पना करो कि अपनी आखिरी गोली से किसी पर गोली चलाओ और वो पलक भी ना झपकाए। रोटांग जित मुआंगनोन को मारने पर यही महसूस होता है। दुनिया के चैंपियन जिनके मुक्के हथौड़े जैसे हैं, जिन्होंने दिग्गजों को नॉकआउट किया, उन्होंने रोटांग जित मुआंगनोन पर अपने सबसे अच्छे पंच आजमाए और सभी को एक जैसा जवाब मिला। आज जानिए ये आदमी मुए थाई को क्यों डराता है और कैसे इतिहास के सबसे बेहतरीन फाइटरों में से एक बना। रोटांग का बचपन दक्षिण थाईलैंड में बीता। उनका परिवार रबर के खेत में काम करता था। 8 साल की उम्र में ही वे पैसे कमाने के लिए स्थानीय टूर्नामेंटों में लड़ने लगे थे। ये शोहरत नहीं, जिंदगी के लिए था। 14 साल की उम्र में वो अकेले बैंकॉक गए। जिट मुआंगनोन जिम से जुड़ गए और उस दिन से रोज 6 घंटे बिना किसी अपवाद और बिना शिकायत के ट्रेनिंग करने लगे। 100 लड़ाइयों के बाद दुनिया उस आदमी को जानने वाली थी जिसे दर्द नहीं होता। वन चैंपियन में उनका पहला विरोधी सर्जियो विल्सन था, किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियन। एक आदमी जिसने रोटांग के काफी वीडियो नहीं देखे थे। पहले राउंड से ही थाईलैंड के फाइटर ने उसे अपना निजी पंचिंग बैग बना लिया। विल्सन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। Outside leaking and head kicker from Sergio Wilson. He will waste no time. He's going to try and catch Rodtang cold here. And there's Rodtang. A left hook and a straight right hand. Followed that Sergio Wilson knows the atmosphere of the One Championship, but he also owned in Thailand for not coming forward. A jumping knee from Wilson. A nice little uppercut then, but he got caught flying in with an uppercut to the liver. Starts going to the solar plexus. Starts going to the split. That battle between the Netherlands and Thailand continues here at One Super Series. Look, Rodtang, outside thigh kick, then a front kick to the midsection, uppercut by the Michael Estra. Left hook, right hand there from Rodtang, a high right roundhouse. 1:25 remains. No feeling out process here in the opening round. They clinch up now, a chance for the knees. A beautiful cutting uppercut, especially because Wilson's got a little bit of a height advantage on him. Beautifully throws that kick to the side, attacks the body. Oh, what a dump! Here's the power from Rodtang. विल्सन रोटांग के गुस्से के आगे असहाय था। We're underway, and Wilson confronting. There's another front kick from the Dutchman, and here comes Rodtang. Wilson throws a rim. Beautiful push. Wilson's got to get off the cage, and Rodtang tries the elbow again. Wave the white flag, and there's another attack. As he's getting these push, comes forward again, turning back kick for Gavang. Sergio spinning back fist, and just up an elbow from the Surinamese, and Rodtang up with the left hand out of southpaw stance. There's a wild hook. Have you ever seen a walk forward star like Rodtang? Confidence and belief in himself. Straight right hand, then a short right hand. Wilson now with the knees, and Rodtang kick covers up with a forearm. Rodtang catching right hand. Remaining now. Right hand from Rodtang. Another jump for the tie. दुनिया ने अभी अभी आयरन मैन को जाना था और उसके प्रतिद्वंद्वी जानने ही वाले थे कि इसका क्या अर्थ है। सूची में अगला नाम था तगीर खलीलोव, एक रूसी जिसे पुतिन ने सीधे भेजा था ये जांचने के लिए कि क्या रोटांग सच में लोहे का है। साइबेरियाई भालू पूरी ताकत के साथ आया, भारी घूसे, लगातार दबाव, ये विश्वास के साथ कि थाईलैंड का खिलाड़ी देर सबेर हार मान लेगा। See, this is vintage Rodtang upset. Body shots ahead there from Rodtang. Good cover up though, and the flyweight kickboxing world title. Catching it 81% saying by a knockout. Yeah, I don't know if just getting past the first. खलीलोव ने जोरदार घूसे मारे। रोटांग ने उन्हें ऐसे सहा जैसे वो सिर्फ शुभ रात्रि की थपकियां हों। Up the aggressor meter. A cool attack because he is continually rolling. Round coming out.
Wilson, he'd have the speed over Rodtang, eats a right hand there. Sit there and trade shots with Rodtang, Jim Wong-nan. Better round here in the second. He's got एक पल उसने और मारने को कहा, सचमुच। great debut for Tia Kalilov. रूसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो आयरन मैन को तोड़ डालने आया था, मगर आखिर में सोचने लगा, क्या ये सच में इंसान है? Showboating from Rodtang, but keep in mind, those are punches landing. Dropping their hand next time Rodtang does that. You can't just punch him like that. He's got... And Kalilov's about to go the distance. Final 10 seconds. Tremendous. Rodtang will take the victory this. कलीलोव रूस लौटा ताकि अपने भालुओं को बता सके कि उसने उनसे भी डरावनी चीज देखी है। सच का पल आ गया था। वन चैंपियनशिप की बेल्ट दांव पर थी और चुनौती देने वाला था जोनाथन हैगर्टी, एक अंग्रेज जिसे द जनरल कहा जाता है, जो बहुत साफ योजना के साथ थाईलैंड आया था आयरन मैन को तबाह करना। और इसे मानना पड़ेगा, जनरल पूरी तैयारी के साथ आया था। पहले राउंड से ही उसने साफ, सख्त और सटीक पंच मारने शुरू कर दिए, ऐसे पंच जो किसी को भी स्ट्रेचर पर ड्रेसिंग रूम भेज दे। Show Champion aus Großbritannien. Ein hoher Check da. Ein Zweiter von der Taskin von Hagi. Und da ist der Tritt zu verpassen. Ich kann es kaum erwarten, ihm einen Frontkick zu verpassen. Von hier aus ist er. लेकिन रॉडटैंग उन पंचों को झेलता रहा और आगे बढ़ता रहा। im Fliegengewicht an, der auf dem Spiel steht, die etwa 3000 Jahre zurückreicht. Wieder Frontalangriff. Sehen. Schöner Sieg. Jetzt fielen dieser Tritte aus. Er bewegt seinen Kopf viel besser. Michael, das ist Sam Geyer. Hitze. हैगर्टी को भरोसा नहीं हुआ। वह उन पंचों के लिए महीनों ट्रेनिंग कर चुका था। उसने उन्हें पूरी तरह से निखार लिया था। ये थाईलैंड का लड़का उन्हें ऐसे झेल रहा था जैसे वो बस गुदगुदी हो। यहीं पर जनरल ने अपने करियर की सबसे महंगी गलती कर दी, सोचना कि रोडटैंग की कोई सीमा है। जैसे ही आयरन मैन ने नियंत्रण लिया, उसने जनरल को कुछ राउंड्स में साधारण सिपाही बना दिया। Links, aber er geht auf die Powerseite. Noch Wohltätigkeit. Muss runter. Muss zu den Seilen mit einem linken Haken und feuert die linken Tritt ein und tritt zurück. Und genau in dem Moment die rechte Körperseite des Champions zu treffen. Und haken, und hier kommt der Iron Man. Hier ein. Er wird den Köder noch nicht schlucken. Fast. Hängt den ab. Das ist eine सर्वसम्मत निर्णय। रॉडटैंग वन चैंपियनशिप का नया चैंपियन। तेंशिन नसुकावा जापान का वो सनसनीखेज सितारा था जिसने किक बॉक्सिंग में सब कुछ जीत लिया था। 27 जीते, 80% नॉकआउट से। Just 90 seconds left on the clock. Oh, spinning kick there from Tenshin Nasukawa. हर बार जब वो रिंग में आता तो हिंसा का तमाशा होता। あと何が必要になってきますよ。倒すには。As a professional. दुनिया ये लड़ाई देखना चाहती थी। मुए थाई का राजा बनाम किक बॉक्सिंग का राजा, और उन्हें वो सच में मिली भी। शुरुआत से ही दोनों मारने के इरादे से उतरे। नसुकावा ने अपनी बेहद सटीक रफ्तार दिखाई। रोडटैंग अपनी लगातार प्रेशर के साथ कोई भी पीछे नहीं हटा। कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। जापानी ने उसे ऐसी कॉम्बिनेशन मारी जो दुनिया के किसी भी और फाइटर को नॉकआउट कर देती। रोडटैंग ने उन्हें झेला, मुस्कुराया और सूद समेत जवाब दिया। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी
कि दोनों बराबर रहे। एक्स्ट्रा राउंड में भी जब दोनों थक चुके थे, किसी ने आखिरी सेकंड तक हार नहीं मानी। जजों ने नासुकावा को जीत दे दी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि उस दिन रोड टैंक जीतने के हकदार थे, लेकिन जो दुनिया ने उस रात देखा उसे कोई नकार नहीं सका कि ये थाई लड़ाका वाकई में अटूट था। वापस घर पर अगला जिसने हिम्मत दिखाई वो था फहदी खालिद, एक ट्यूनीशियाई जो कई वर्ल्ड टाइटल्स के साथ आया था, और एक आत्मविश्वास जो साफ तौर पर रोड टैंक जैसे किसी के खिलाफ नहीं परखा गया था। जैसे ही दर्शक अपनी सीटों पर ठीक से बैठे भी नहीं थे, रोड टैंक हर तरफ से ट्यूनीशियाई को तबाह कर रहा था। खालिद ने जवाब देने की कोशिश की। उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। वह आयरन मैन के सामने खड़ा हो गया और पूरे 3 राउंड तक जवाबी घूंसे मारे। समस्या यह है कि रोड टैंक को मारना और रोड टैंक को रोकना दो बिल्कुल अलग बातें हैं, क्योंकि जब खालिद हर एक पंच लगने पर जश्न मना रहा था, रोड टैंक बस लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, मानो उसके शरीर ने दर्द से कोई अनुबंध कर लिया हो जिसमें सब स्पष्ट लिखा हो, तुम यहां दाखिल नहीं हो सकते। Hooks the arm, spins him to the head, both punches miss, spins back elbow. They throw a downward elbow, just didn't have the time or the distance. There's the downward elbow. Fadi Khalid. लगातार 3 राउंड की पिटाई के बाद जजों को कोई शक नहीं रहा। सोक थाई कंबोडियाई था और वह लड़ाई में अधिक आत्मविश्वास के साथ आया, जो बड़ी गलती थी, क्योंकि रोड टैंक ने तय किया कि वह इसे जल्द से जल्द मिटा देगा। पहले ही सेकंड से आयरन मैन सीधे मुद्दे पर चला गया। न कोई वार्म अप, न कोई प्रोटोकॉल, न कोई दया। कंबोडिया ने जितना हो सका सहन किया, ये बात माननी पड़ेगी। इस जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई तैयारी काफी नहीं होती, और उनमें से एक है रोडटांग जितमुआनो का नॉकआउट झेलना। सूची में अगला नाम था जैकब स्मिथ, जिसे द काउबॉय कहा जाता है। रोडटांग ने अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर एक कट लगा दिया और तय किया कि अगले 3 राउंड तक वह उसी चोट पर पूरा ध्यान देगा। Immediately starts attacking those legs. Off the back leg, circles, counts the clock. If he gets in that punching range of Rodtang, start to see these openings present themselves as the match wears on. That's that bad company for you right there. He's going for it, but he's left. Body shot to bring inside the circle with you. Uppercut elbow, step through as well off the lead hand. वही जगह, वही कोहनी, और सजा जारी रही। In the middle of his face, he didn't have one before.
Now Rodtang again with the elbow. Showing exactly where the home is. Land. He's in that no man's land again. Do not let Rodtang tee off on him. Shun gets out of the way of the fast left hook. Up even in the power of his hands and his chin. Those elbows like a knife and staggers Jacob Smith. Another rattling up. स्मिथ ने आखिर तक सहन किया। इस बात को मानना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात सजा नहीं थी, बल्कि वो था जो उसके बाद हुआ। रॉडटैंग, वही आदमी जिसने 3 राउंड तक काउबॉय के चेहरे की शक्ल बदल दी थी, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। Rodtang, look at that, on his knees. We spoke to every fighter in this tournament. We are. लासिरी इतालवी था, एक निचली डिवीजन का चैंपियन जिसने रॉडटैंग की बेल्ट जीतने के लिए वजन बढ़ाया। गलत फैसला था। पहले राउंड से ही आयरन मैन ने उसे रिंग में ऐसे दौड़ाया जैसे रसोई में तिलचट्टे का पीछा होता है। लासिरी ने भागने के लिए अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रॉडटैंग में एक बहुत खास गुण है। वो थकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो समझौता नहीं करता और उसे दर्द महसूस नहीं होता। राउंड दर राउंड इतालवी रॉडटैंग से भाग रहा था। अब वह थाई खिलाड़ी के सब्र की परीक्षा ले रहा था। पांचवें राउंड में अंत आ गया। रॉडटैंग ने उसका मजाक उड़ाकर पकड़ लिया और बहादुर इतालवी की कहानी वहीं खत्म हो गई। अगला उभरता हुआ चीनी फाइटर रिंग में आते ही पहले सेकंड से कॉम्बिनेशन मारने लगा। लेकिन रॉडटैंग रिंग में ऐसे घूम रहा था जैसे वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उसने चीनी को मारने दिया। उसने जो भी आया उसे झेल लिया और वो उसी शांति के साथ जवाब देता रहा जैसे किसी को पहले से पता हो कि ये कहानी कैसे खत्म होगी। प्रॉस्पेक्ट ने दूर से हमला किया, लेकिन आयरन मैन के कवच में कोई कमजोरी नहीं थी जिसे चीनी पहचान सके। तीन राउंड बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। रॉडटैंग हमेशा की तरह। ये समझने के लिए कि ये लड़ाई क्यों मायने रखती है, आपको समझना होगा कि डिमेट्रियस जॉनसन कौन है, जिनका उपनाम माइटी माउस है। यूएफसी इतिहास में सबसे ज्यादा लगातार खिताब का बचाव करने वाले फाइटर। एक ऐसा आदमी जिसने वर्षों अपने डिवीजन में राज किया, जिसकी तकनीक इतनी परफेक्ट थी कि वह अन्यायपूर्ण लगती थी। अब वह रॉडटैंग को चुनौती देने आ रहा था, लेकिन इसमें एक पेच था। लड़ाई शुद्ध मुए थाई के नियमों के तहत नहीं थी, यह एक प्रयोग था। पहला व तीसरा राउंड मुए थाई, दूसरा व चौथा राउंड एमएमए नियमों के तहत था। दूसरे शब्दों में रॉडटैंग को 2 राउंड एक ऐसी जगह पर लड़ना था जो उसके लिए पूरी तरह अनजान थी, दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर के खिलाफ।
पहला राउंड रोड टैंक का था। दबाव और पंच में आयरन मैन ने माइटी माउस पर पूरी तरह दबदबा दिखाया। मुकाबला करने का कोई मौका नहीं दिया। Elbows from Rod Tang in the clinch, and knee from TJ. Rod Tang, Rod Tang, body shot. Overhand right from TJ. Muay Thai rule set, he keeps clinching. Inside thigh kick from Rod Tang. Front kick to a round kick from TJ. Nice good hook. Overhand elbow. Oh, beautiful right hand. Smash it. Again connection with the right hand. लेकिन दूसरे राउंड में सब बदल गया। जॉनसन ने फाइट को ग्राउंड पर ले जाकर रॉड टैंक को पूरी तरह बेबस कर दिया। उसके पास कोई जवाब या बचने का रास्ता नहीं था। माइटी माउस ने उसे सबमिट कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात हार नहीं थी, ये था कि रोड टैंक ने मैट थपथपाकर हार मानने के बजाय होश खोना पसंद किया। आयरन मैन हार मानना नहीं जानता, चाहे उसे मानना चाहिए तब भी। ये था रोड टैंक जित मुआंगनोन, एक रबर के बागान का लड़का जो मुए थाई का सबसे डरावना आदमी बन गया। तुम उसे मार सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो गिरेगा नहीं।